Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham Junior College. In last lecture, we started with our second chapter, that is Aristotle. In that we studied the introduction, then we studied the biography of Aristotle, then we studied views on state. Now, moving forward, we'll look at the basis of classification. As Aristotle takes the constitution and the state as identical, his classification of the former is also to be treated as the classification of the latter. His classification is based on two principles. See, as Aristotle क्या करता है? Aristotle, what he does, he takes the constitution and state. Both are identical. Both has some identity and both plays a important role. So classification is also treated in the same way. Like दोनों को constitution और state दोनों को ध्यान में रखते हुए he had done the classification. Then the classification has done it with some basic principles. See, that is wise quantitative, the first taken into account the number of people in whom the sovereign power is vested, where it is one, few or many. See, first क्या है बोल रहे हैं वो? First is the quantitative. That is the quantitative मतलब the first takes into account like कितने लोग हैं और किसके हाथ में अपन पावर दे रहे हैं. एक के हाथ में दे रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में दे रहे हैं या बहुत से लोगों के हाथ में दे रहे हैं. The second takes into account the end which a government serves. Second क्या देख रहे हैं वो? Second government क्या दे रहा है अपने को, government क्या कर रहा है आपके लिए, right? If the government aims at the common interest of all the people, it is pure form of government. See, अगर government का aim क्या है कि लोगों की भलाई करना, right? It is the प्योर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब ये सही काम है. एक्चुअली गवर्नमेंट का काम यही है ना कि लोगों की भलाई करो, सब करो. सो इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड सेकेंड टेक्स इनटू अकाउंट द एंड विच अ गवर्नमेंट सर्व्स. इफ द गवर्नमेंट एम्स एट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल, it is pure form of the government. On the other hand, if the government serves the private and selfish interest of the ruling class, it becomes a corrupt or perverted government. See, अगर गवर्नमेंट आपका सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, then it is the pure form of government. लेकिन अगर गवर्नमेंट जो रिच लोग हैं, जो प्राइवेट कंसल्टेंसी चलाते हैं, जो प्राइवेट सब अपना काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, और जो रूलिंग क्लास है उनके लिए काम कर रहा है, उनकी भलाई का ही सोच रहा है, देन व्हेन इट इज़ कॉल्ड एज अ करप्टेड गवर्नमेंट. ये इंडिया में अपने बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट? और परवर्टेड गवर्नमेंट मतलब खराब हो चुकी, बिकी हुई गवर्नमेंट. अकॉर्डिंगली सी देर आर क्वांटिटेटिव में दो चीज़ें बोली उन्होंने. फर्स्ट क्या है? एक प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लाइक फर्स्ट क्वांटिटेटिव में दो टर्म बोले. एक तो है लाइक गवर्नमेंट कितने लोगों के लिए बन रही है, कौन चला रहा है, एंड सेकेंड टेक इनटू अकाउंट द गवर्नमेंट क्या दे रहा है. अब उसमें भी अगर गवर्नमेंट इज सर्व फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन लोगों के लिए काम कर रही है, देन इट इज़ द वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट इफ द गवर्नमेंट इज लुकिंग for only private class or the ruling class, then it is a corrupted government. Accordingly, there are three pure forms of government, that is monarchy, aristocracy and polity, in which the power rests with one. See, government भी there are three forms of government. See, one is the monarchy, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी. क्या क्या है? मोनार्ची, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी. इन विच द पावर रेस्ट विथ वन. और तीनों में एक खासियत क्या है? पावर रेस्ट ओनली विथ वन. एक के हाथ में ही सारी पावर है. फ्यू एंड मैनी and the
same, used for the good of the community as a whole. On the other hand, there are three pure form of government have three vested form, that is tyranny, oligarchy and democracy. अभी कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं, या फिर एक जैसी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, तो अदर थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी उन्होंने बोले हैं. अदर थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर tyranny, oligarchy and democracy. In India, we have a democratic form of government. There are also based on numerical form, but they are carried on the selfish interest of the ruler than in the interest of the community. See, कुछ form of government कैसा है? It is based on a न्यूमेरिकल फॉर्मूला ऑल्सो. बट इसमें क्या होता है, अगर आप न्यूमेरिकल कितने नंबर है, कितने लोगों को रूल करना है, उस हिसाब से आप जाओ तो क्या होता है, गवर्नमेंट बिकम्स सेल्फिश. इट फॉलोज ओनली द रूलिंग क्लास एंड ऑल. देन कम्युनिटी पे ध्यान नहीं देती वो. एरिस्टोटेलिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल. सी, एरिस्टोटेलिक का क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट दो प्रिंसिपल पे बनाया हुआ है. फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लाइक कितने लोगों के पास सुप्रीम पावर है. नेक्स्ट, द एंड्स दे सीक टू सर्व सेल्फ इंटरेस्ट और बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. नेक्स्ट क्या है, आप बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी के लिए कितना काम कर रहे हो, राइट. खुद का इंटरेस्ट छोड़ के आप दूसरों के लिए कितना काम कर रहे हो, दूसरों की भलाई के लिए कितना काम कर रहे हो, उस पे इट इज बेस्ड ऑन दैट. See, Aristotle's classification is given in the following table. Rule by one, monarchy और trinity और tyranny. Perverted में trinity. Rule by few, aristocracy and oligarchy. Rule by many, polity और democracy. Perverted में aristocracy. Sorry. Aristotle was of the view that when the rulers aimed at the good of the community, the state would be pure form of state. See, अगर रूलर एक एम रखेगा कि मुझे अपनी कम्युनिटी अच्छी रखनी है, देन तभी अपन बोलेंगे दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ स्टेट और द प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. ऐसे ही होगा ना. अगर ऐसे आपके एरिया में कॉरपोरेटर है और उसका एम एक ही है कि लोगों की भलाई करना, सबका भलाई करना, तो क्या होगा, अपने आप सब अच्छा होगा ना, अपने आप आपकी कम्युनिटी अच्छी हो जाएगी. कम्युनिटी में ज़्यादा कुछ बुरा ऐसे कुछ होगा ही नहीं, सब अच्छा ही होगा कम्युनिटी में, राइट. अगर अपनी कम्युनिटी अच्छी रही तो आजू बाजू का एरिया भी देख के अच्छा होगा. ऐसे धीरे धीरे अपना सिटी अच्छा होगा. एक सिटी अच्छी हुई देख के बाकी दूसरे सिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी. अपना स्टेट इम्प्रूव होगा. स्टेट इम्प्रूव होगा तो अपने आप कंट्री भी इम्प्रूव हो जाएगी अपनी धीरे धीरे. बट एक्चुअली में होता नहीं है ऐसे. When the ruler in such a state becomes selfish, the state would be called as perverted state. अगर रूलर सेल्फिश हो जाएगा तो क्या बोलते हैं अपन, परवर्टेड स्टेट. परवर्टेड स्टेट मतलब क्या समझाऊँ, परवर्टेड करप्टेड हो जाता है. आपका स्टेट है ना, करप्टेड स्टेट बोला जाता है. According to Aristotle, if Soviet reside in one person, it is monarchy. See, Aristotle क्या बोलता है, एक sovereignty resides in one person. आगे एक ही पर्सन बोलेगा मैं रूल करूँगा, सब करूँ, तो क्या होता है, मोनार्ची आ जाती है. लाइक अकेले का ही रूल चलेगा. इट परवर्टेड फॉर्म इज ट्रायनी. सी, अपन देखो, रूल बाय वन, मोनार्ची, ट्रायनी. सेकेंड, इफ द सोवियत reside in small minority of the population, it is Aristotle, right. अगर कुछ नंबर थोड़े से लोगों को रूल कर रहा है, then it is aristocracy. and perverted अगर corrupt form रहा तो oligarchy. If the Soviet power reside in a large portion of the population, it is polity. It perverted form is democracy. जो अपन ने ऊपर का चार्ट देखा है, उन्होंने वही आपको एक्सप्लेन करके वही आपको नीचे वापस बोला है अच्छे से. दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड दैट. इफ यू वांट वी कैन सी रूल बाय वन. नॉर्मल अगर
अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा तो मोनार्ची, एंड परवर्टेड ट्रायनी, रूल बाय फ्यू एरिस्टोक्रेसी, ओलिगर्ची, रूल बाय मेनी पॉलिटी डेमोक्रेसी. Okay, now moving forward, according to Aristotle, the polity was the best and the most practicable form of the government. See, according to Aristotle क्या बोलता है वो, रूल बाय मेनी, बहुत लोग रूल करते तो अपन क्या बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं. और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है, बिकॉज इट पोजेस्ड अ हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ लिबर्टी एंड वेल्थ. लाइक हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ लिबर्टी एंड वेल्थ भी होता है, बहुत लोग रूल कर रहे हैं, भले ही किसी के अंडर में हो कुछ भी हो, बट बहुत लोग रूल कर रहे हैं तो क्या होता है, सब एक दूसरे पे चेक रखते हैं ना कि पापा ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, इसने बहुत ज़्यादा वेल्थ ऑक्यूपाई की है क्या. सब एक दूसरे पे ध्यान रखते हैं तो क्या है, करप्शन वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है, एज पर द एरिस्टोटेली. He held that the best constitution was the one which was practicable. See, he held that. क्या बोलता है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक्चुअल में अपन प्रैक्टिस में ला सकते हैं. He was even willing to have a monarchy provided the monarch was enlightened. He was even क्या था उसका विश क्या था बाबा, कि मोनार्ची लाए जो मोनार्ची अच्छे से एनलाइटेड हो, जिससे सबका फायदा हो, जिससे सबका भला हो. However, he asserted that monarchy and aristocracy have a tendency to degenerate and do not possess the quality of the moderation and stability which is a characteristic feature of polity. See, however क्या हुआ, he asserted that monarchy and aristocracy ये दोनों क्या है, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि दोनों में कुछ क्वालिटी है जो मॉडर्न स्टेबिलिटी के लिए भलाई नहीं है, और वो सारे अच्छे कैरेक्टर्स जिसमें है पॉलिटी में है. लाइक जो क्वालिटी जो अच्छे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो पॉलिटी के हैं वो मोनार्ची और एरिस्टोक्रेसी में नहीं है. सो ही इज टेलिंग कि लाइक रूल बाय मैनी इज द बेस्ट फॉर्म. Aristotle says that no form of government or constitution is permanent or everlasting and the different form of government keep on changing. Aristotle क्या बोलता है कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट नहीं रहता है कभी कभी, और ना ही हमेशा से वही चलते जाता है, और दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, और जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो कीप ऑन चेंजिंग है. जैसे इंडिया में देखो, अपने पास एक ही पार्टी रूल करते आ रही है क्या, नहीं. इतने साल किसने रूल किया था, पहले कांग्रेस ही रूल करते आ रही थी, देन केम द बीजेपी बिकेम द मेजर रूलिंग पार्टी, फिर कांग्रेस आया, और अभी फ्रॉम लास्ट 2 इलेक्शंस बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी, राइट. और ऐसे बहुत से पार्टी हैं अलग अलग स्टेट में, और अलग अलग बहुत सी पार्टीज है एंड दे आर द रूलिंग पार्टी ओवर दैट स्टेट. बट इफ यू कंपेयर इन इंडिया, बीजेपी इज द ruling party. This change, according to Aristotle, takes place in a circle. अब ये कैसे है, ये सारा सर्कल वाइज चालू रहता है एंड इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. लाइक सर्कल को कभी एंड होता है क्या, नहीं होता, सर्कल नेवर हैज एन एनी एंड. उसी तरह ये गवर्नमेंट भी गोज ऑन चेंजिंग एंड इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस. इट इज जस्ट लाइक अ सर्कल. The monarchy, which is a normal government, gets degenerated in the course of time and is replaced by tyranny. See, the monarchy, ये क्या है, ये एक normal form of government है that gets degenerated in course of time. वो degenerate हो जाता है and it is replaced by tyranny. Similarly, aristocracy degenerates into oligopoly and polity into democracy. See, अभी क्या होता है, सबसे पहले ट्रायनी आता है, फिर ओलिगर्ची आता है, डेमोक्रेसी, पॉलिटी, ये सारे धीरे धीरे सब आते हैं, धीरे धीरे इट गोज ऑन चेंजिंग. बट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन एंड इज रिप्लेस्ड बाय मोनार्ची. सी, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में अपने पास वो क्या है, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट हैपेंस इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी आर
फ्री टू डू मैनी थिंग्स, राइट। बट यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी कंटिन्यू चलेगा क्या? नहीं, इट इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। धीरे धीरे इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय मोनार्ची. So this is a continuous process and it goes on changing continuously. In this way, the process of change continues. This process of change, investigated by Aristotle, is popularly known as Aristotle's circle of change. इसको जो ये continuous process जो चलती रहता है, it is known as the Aristotle's cycle of change. It is known as the cycle of change. नाउ ये साइकिल ऑफ जो चेंज है वो अपन और डिटेल में देख रहे हैं. Aristotle's cycle of political change. Aristotle has not only given the classification of state or government, he has also tried to investigate the development and cycle of change. See, Aristotle ने क्या किया, उसने क्लासिफिकेशन सिर्फ स्टेट एंड गवर्नमेंट का नहीं दिया, उसने he also tried to investigate their development and cycle of change. उसने सिर्फ क्लासिफिकेशन दे के छोड़ा नहीं है, उसने हर एक क्लासिफिकेशन को he had investigated very deeply, and after investigating it very deeply he had developed something and he had came to be, and it has came to be known as the cycle of change. According to him, change has taken place in all form of administration as a natural process. Now according to him क्या है, change has taken place in all forms of administration. See, change क्या है, एक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया तो हो गया क्या? नहीं. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटेली, चेंज हर एक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है एंड इट इज नोन एज द नेचुरल प्रोसेस, राइट. लाइक गवर्नमेंट, ये सारा क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट सारा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होगा? नहीं. उसी वक्त उसी वक्त क्या हो रहा है, ऑल द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल्सो चेंजिंग and it is going on in a natural process because the form of state revolves like the wheel of cycle. ऐसे क्यों ये सब नेचुरली चेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो फॉर्म ऑफ स्टेट है ये एक व्हील के जैसा है. अपना साइकिल का व्हील कैसे है, जैसे जैसे आप पेडल मारते हो वैसे वैसे दो व्हील रोटेट होते रहता है, राइट. जब व्हील रोटेट होता है तभी साइकिल आगे जाती है. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. जैसे जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो रहा है, स्टेट में भी बहुत से चेंज हो रहे हैं एंड इट गोज ऑन कंटिन्यूसली, सर्कल सर्कल में चलते रहता है क्योंकि इट इज कंपेयर्ड टू एज अ व्हील ऑफ साइकिल. अकॉर्डिंग टू हिम, द फर्स्ट गवर्नमेंट्स वेर किंगशिप. Probably for this reason, in olden times when cities were small, men of eminent virtues were few. अभी पहले कैसा था, किंगशिप था, लाइक एक राजा रूल करेगा. द फर्स्ट फॉर्म गवर्नमेंट वेर किंगशिप्स, लाइक किंग सब जगह रूल करते थे. इसलिए क्या रहता था, पहले के ज़माने में क्या था, किंग रूल करता था, सिटीज़ छोटे छोटे थे, तो बहुत से लोग भी क्या थे, अलग अलग व्यूज़ के थे, सब थे, और लोग भी बहुत ज़्यादा भी नहीं थे ऐसे. दे वेर मेड किंग्स बिकॉज दे वेर मेड बेनिफिटरी एंड हेंस बेनिफिट कुड ओनली बी बेस्टोड बाय वर्चुअस मैन. लाइक ईमानदार लोग थे ना, छोटा ही जगह था, एवरीवन वेर लॉयल, एवरीवन यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, राइट. तो वहाँ पे जो किंग थे वो भी क्या करते थे, अच्छे से काम करते थे, और छोटी सी जगह थी तो क्या करता था, किंग भी क्या करता था, जितना हो सके उतना लोगों के लिए करता था, और लोग भी थोड़े रहने की वजह से क्या थे, दे वर वर्च्यू, लाइक वो भी ईमानदारी से सब कुछ काम करते थे. बट when many people equal in merit arose against the preeminent of one, they formed a commonwealth and set up a constitution. बट क्या हो गया, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लग गया. अब जैसे जैसे लोग बढ़ने, पॉपुलेशन बढ़ने लग गया, बहुत से लोग कंपटीशन में आ गए, बहुत से लोगों के कॉमन इंटरेस्ट सबके अलग अलग हो गए, और जिनके कॉमन इंटरेस्ट होने लग गए उनके व्यू पॉइंट अलग, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड अप मैसिंग अप. सो व्हाट दे डिड, दे सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा रहता है ना, अगर आप ये बनते हो तो आपको ये करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट, ड्यूटीज़
सब कुछ लिखा हुआ रहता है, आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, everything is written in the constitution. The ruling class soon deteriorated and enriched themselves out of the public treasurer. See, जो रूलिंग क्लास था वो क्या हो गया, धीरे धीरे निकल गया. रिचर बिकेम द पाथ टू ऑनर एंड हेंस ओलिगार्ची ग्रीव अप. अभी जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे वो आगे आने लग गए और उनको ऑनर भी मिलने लग गया. They passed into tyranny and tyrannies into democracy. See, they passed into tyranny. अभी ओलिगार्ची आया, अभी ओलिगार्ची धीरे धीरे tyranny में जा रहा है और tyranny into democracy. The love of gain in the ruling class always tended to diminish their number and so it strengthened the masses. See, the love of gain क्या आ गया, अभी रूलिंग क्लास क्या हो गया, वो धीरे धीरे निकल जा रहा है और धीरे धीरे लोगों में ही बहुत सी ताकत आ रही है. एंड द मासेस, जो कॉमन लोग थे जो उधर लड़ रहे, दे बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड दे स्टार्टेड गेनिंग द स्ट्रेंथ. लाइक उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा वो लेने लगे पॉलिटिक्स. द मासेस इन द एंड सेट अप देयर मास्टर्स एंड एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी. अभी मास्टर, अभी सी अपन एडुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं. अभी हर कोई एडुकेशन मिनिस्टर बन सकता है क्या? नहीं. जो पॉलिटिक्स में है, जिसको कुछ नॉलेज है, जो होशियार है, ही कैन बी एडुकेशन मिनिस्टर, राइट. जिसको एडुकेशन के लिए कुछ करने की इच्छा है, ही कैन बिकम एडुकेशन मिनिस्टर. तो दे सेटअप दिया ओन मास्टर, तो उन्होंने अपना मास्टर बना दिया. जैसे आर्टिसन क्लास था, आर्टिसन क्लास में उन्होंने एक अपना हेड बना दिया. तो क्या हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने चालू हो गई. इट इज़ क्लियर from this statement of Aristotle that first of all monarchy was established in the society and the superior person in the society was elected as king. It is clear from this statement, एरिस्टोक्लेट का जो स्टेटमेंट है उससे क्या क्लियर होता है, दैट सबसे पहले मोनार्ची वॉर एस्टेब्लिश हुआ इन द सोसाइटी, फिर सुपीरियर पावर आई एंड फिर किंग हो जाता था, राइट. ऐसे ही किसी को भी किंग इलेक्ट करते थे क्या? नहीं. किसके पास कौन सुपीरियर है सोसाइटी में वो देखते थे. लाइक किसके पास सब हुनर है किंग बनने की, उसके पास उससे ज़्यादा कोई सुपीरियर है क्या? नहीं. फिर सोसाइटी में इलेक्ट करते थे एंड ही यूज्ड टू बी इलेक्टेड, सोसाइटी डिसाइड करती थी एंड ही यूज्ड टू बी इलेक्टेड एज अ किंग. आफ्टर सम टाइम व्हेन द किंग बिगैन टू एक्सप्लॉइट द मासेस फॉर देयर सेल्फिश एंड tyranny was established. अभी क्या हो गया, किंग बना दिया. अब किंग क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को इन द सोसाइटी. तो क्या हो गया, अभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गया. नाउ tyranny was established again. People did not tolerate this type of administration for long, right. people ने क्या, लोगों ने क्या किया, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत देर तक उन्होंने सहन नहीं किया. एंड दे गिव द सोवियत पावर टू फ्यू इंटेलेक्चुअल्स. और उन्होंने क्या किया, ही गेव अप देयर पावर टू फ्यू इंटेलेक्चुअल्स. फ्यू इंटेलेक्चुअल्स मतलब क्या, जो होशियार है, जिनके अंदर काबिल है, उनके हाथ में उन्होंने पावर देती कि बाबा तू ये हमारा संभाल, तू हमारा लीडर बन जा. जैसे अपन ट्रेड यूनियन वगैरह बोलते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हो गया था. थस एरिस्टोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड. तो अब क्या आ गया यहाँ पे, एरिस्टोक्रेसी आ गई यहाँ पे. विद द लैप्स ऑफ टाइम द कैरेक्टर ऑफ एरिस्टोक्रेसी डिटोरेटेड एंड ओलिगार्ची वॉज एस्टैब्लिश्ड. अब जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे एरिस्टोक्रेसी धीरे धीरे कम हो गई और ओलिगार्ची वॉज एस्टैब्लिश्ड. बट द पीपल कुड नॉट फॉर लॉन्ग टॉलरेट अ गवर्नमेंट. अब लोग बहुत देर तक ये गवर्नमेंट नहीं टॉलरेट कर सकते जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते जा रहा है. तो द एम ऑफ विच वॉज द बेनिफिट ऑफ द रूलिंग क्लास अलोन. और इससे क्या हो रहा था, ओनली रूलिंग क्लास वॉज गेटिंग द बेनिफिट. व्हेन अपॉर्चुनिटी केम, citizen as a whole made a successful revolt against such authority and established a polity. जब सही वक्त आया तब लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा रिवोल्ट किया अगेंस्ट सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड दे एस्टेब्लिश्ड अ पॉलिटी जहाँ पे बहुत लोग रूल कर रहे हैं. द सुप्रीम पावर बीइंग वेस्टेड इन द हैंड ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. तो पावर किसके पास चली गई,
जो पॉपुलेशन है, जो मेजर पॉपुलेशन है, उसके पास पावर चली गई। लाइक किसी एक हाथ में ऐसे नहीं गई, बहुत से लोगों के हाथ में चली गई। इट वॉज यूज बाय देम फॉर द कॉमन गुड। अब ये जो पावर थी वो अच्छे कॉमन गुड के लिए यूज कर रहे थे। हेन पॉलिटी बिकेम परवर्टेड। अब पॉलिटी क्या हो गई? परवर्टेड होने आ गई। इट वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय डेमोक्रेसी। अब फिर से क्या हो गया? डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी degenerated and people rise in revolt against it and thus democracy disappear। अभी डेमोक्रेसी क्या हो गया? डिजेनरेट होने लग गई। पीपल अभी रिवॉल्ट, डेमोक्रेसी भी अभी अच्छे से नहीं चलने लग गया, वापस करप्शन शुरू हो गया, तो धीरे धीरे रिवॉल्ट किया और डेमोक्रेसी डिसअपियर्ड। अगेन द पीपल इलेक्ट ए वॉरियर स्टेट्समैन एज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड मोनार्ची इज एस्टेब्लिश्ड। अब पीपल ने क्या किया? फिर से एक वॉरियर इलेक्ट किया एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कि ये हमारा सब करेगा बोल के, और फिर से मोनार्ची आ गई। इन दिस वे एरिस्टोक्रेटिक सर्कल ऑफ पॉलिटिकल चेंज रिवॉल्व। इस तरह से कंटिन्यू चेंज चल रहा था, एरिस्टोक्रेटिक साइकिल ऑफ पॉलिटिकल चेंज चलते ही जा रहा था। सो दिस वॉज द एरिस्टोटेलिस साइकिल ऑफ पॉलिटिकल चेंज। Now next is the criticism of Aristoteles classification of state। अभी अपन ने देखा कि बाबा कितना अच्छा बना है, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। उसके ड्रॉबैक्स जो भी थे विल बी लुकिंग इन द नेक्स्ट lecture। We'll wind up our lecture here. If you have any doubt, just mail me on my mail ID. It's Rasika RASIKA dot Pagaria PAGARIYA @arahamedu.in। Thank you.